हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई 98% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स विल नेवर क्लियर दिस एग्जामिनेशन। क्यों 98% लोग ये एग्ज़ाम को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके कुछ रीजंस है। द फर्स्ट रीज़न इज दैट आवर रीज़न ऑफ गिविंग दिस एग्जाम इज़ नॉट क्लियर। हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। द रीज़न, द पर्पस ऑफ दैट गोल, कि हमें ये गोल क्यों अचीव करना है या ये क्यों हम कर रहे हैं, हमारा क्लियर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं एग्ज़ाम को, जैसे आपके अगर पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, या आपके फ्रेंड्स के वजह से, क्योंकि हर कोई आपके स्कूल में या क्लास में ये एग्ज़ाम दे रहा है तो आप भी देने लग जाते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच, गलत है। इससे आपको एक एक्सटर्नल पुश हमेशा चाहिए होगा उसको अचीव करने के लिए। बट इफ़ योर रीज़न इज़ क्लियर, इफ़ योर वाई इज़ क्लियर कि आपको वो क्यों अचीव करना है, say suppose you know that you have to be in the judiciary system of a country, and you want to be a lawyer, or you want to be a corporate lawyer for that matter, or a criminal lawyer. If you have that reason that you want to be one of the best, maybe say Ram Jethmalani for that matter, if your reason and why is clear, it will be easier for you to achieve. Sadly बहुत लोगों का ये why clear नहीं होता है, इसीलिए ये problem face होता है आपको एग्जाम देने में। Because in this exam you have to prepare a lot. For any competitive exam as such, you have to prepare a lot, you have to give in a lot of hours, आपको बहुत घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, and many students take a drop as well. Your why should be clear. So this is reason number one. Students should also keep this reality in mind, that out of 58,000 people who appeared for this examination, only 1200 are selected for the top NLUs, and only 120 are selected for NLU Bangalore, which is rank 1 in the priority list of students. So the selection rate is around 2.2% only for all the NLUs. Only 2% people approximately get selected, and to be in the top NLU Bangalore, only 0.2% people are selected. So can you see the difference? Like, क्या आपको लगता है कि आप उतना इनपुट दे रहे हैं कि आप वो 2.2% की लिस्ट में हैं? एज एन डू यू फील कि आप 98% लोग से बेटर हैं उस चीज़ में अभी? इफ़ येस, देन श्योरली यू विल अचीव सक्सेस। बट इफ नॉट, यू शुड रीअलाइन योर स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस अकॉर्डिंगली एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट लेवल कि आप 98% कॉम्पिटिशन को बीट कर पाए। इन द एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, so I feel that you should keep this reality of numbers in mind. In CLAT 2020 only 78,000 people had applied. 78,000 people had applied for this examination, of which only around 78% had appeared. The numbers around 58,000 approximately, and out of these 58,000 only 1,200 would be selected in the top NLUs. I'm sure there are private colleges as well, but if you're aim for at least the government colleges. So keep this reality in mind of 2.2% people getting selected and 0.2 for top NLU Bangalore. The third reason I see people unable to clear competitive exams is that they do not have the attitude of giving an extra push or an extra edge when required. In the sense, when the examination is nearby, are you dedicating one extra hour per day, or those extra hours needed? आपको वो एक्स्ट्रा आवर एक पुश करना ही पड़ेगा, आपको डेली एक वन आवर पुश करना पड़ेगा, एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट. If your time management is very poor, like I was very bad at time management, but I'm trying to learn and adapt. I won't say I'm an expert, but I'm trying to adapt and learn. There are two principles which people should keep in mind. They can read up on Google also, which is the 20-80 principle, which says that 20% of your actions लीड अप टू 80% ऑफ आउटपुट. मतलब आप 20 काम ऐसा करेंगे 100 काम में से जिससे 80% आउटपुट आ सकता है. दिस इज अ लॉ गिवन बाय, दिस इज ऑल्सो नोन एज द परेटोज लॉ, एंड दिस ऑल्सो दिस लॉ विच इज कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ. इन द सेंस उसको बोलते, पार्किंसंस लॉ का लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी काम को 1 घंटा दें या 1 दिन दें, आप उतना ही टाइम लेंगे. सो इफ़ यू हैव द प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन अराउंड 1 आवर, वो ऑटोमेटिकली आप 1 घंटे में कर लेंगे. अगर आपको सिलेबस, आप बोलेंगे कि आपको इंग्लिश का ही पर्टिकुलर सिलेबस क्लैट का आपको कंप्लीट करना है मे बी से 1 महीने में, तो उतना ही टाइम आपको लगेगा कंप्लीट करने में. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एंड ईच आवर इज लाइक इट्स मोर वैल्यूएबल एंड प्रेशियस देन टाइम. लाइक टाइम इज गोल्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स, स्पेशली फॉर क्लैट पीपल. सिंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना ज़्यादा है कि आपको टाइम इज लाइक गोल्ड. इट्स लाइक यू हैव टू सेव टाइम एंड यू हैव टू मेक टाइम फॉर दी
preparation. So another distraction in today's age which aspirants face is like social media and of the internet. There is content terrorism in a way, because there's so much content out there that you would need single focus dedication, a single focus on what content to focus upon. There are so many YouTube channels, इतने सारे वीडियोज़ है, इतने सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जीके का, करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर ट्रैकिंग का, इंग्लिश का, क्वांट का, इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको कन्फ्यूजन होने लग जाएगा. बट आपके पास टाइम तो उतना ही लिमिटेड है, बट आपके पास कंटेंट इतने सारे हैं, तो आप उसको कैसे टाइम को मैनेज करेंगे. इसके वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मेंटरशिप का ज़रूरत होता है, विच दे अवॉइड, एंड दे ऑल्सो फील कि वो अकेले कर सकते हैं, बट वो हो नहीं पाता है. आई हैव बीन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम एंड आई हैव वेस्टेड अ ईयर्स टाइम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस आई वुड से. सो प्लीज़ यूज़ सोशल मीडिया जुडिशियसली. जितना आपके पास टाइम हो, अगर आप 10 मिनट देना चाहते हैं, दिन का 10 मिनट ही दें. आई वुड से अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट, बिकॉज वॉट हैपन्स इज दैट आप टाइम लगाएंगे इतना सा सोच के, बट वो कब इतना हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है. सो वो टाइम बढ़ते जाएगा. अनदर मिस्टेक आई सी एस्पिरेंट्स मेक इज़ दैट वो बहुत सारा किताब खरीद लेते हैं, ऐसे वो उनको बुक कलेक्टर बनना है. बट प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक. आपको बुक्स ज़्यादा कलेक्ट करके ज़्यादा रिविजन नहीं कर पाएंगे आप. आपको कम बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना है एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है. मोर द नंबर ऑफ रिविजन्स, मोर दी मेमोरी, लाइक उतना ही आपके ज़्यादा माइंड में स्टिक रहने वाला एग्ज़ाम के पहले, एंड वही आप आउटपुट निकाल पाएंगे. सो आपको हमेशा कम पढ़ के, कम बुक से, कम सोर्सेज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना है. ज़्यादा बुक से आपको ज़्यादा पता हो जाएगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं. So please, less number of sources, more revision. Another blunder I see aspirants make is that they never read the previous year question papers, and they never see the pattern of the examination, and they never see the syllabus as well. I would say first syllabus को आप देखिए, पैटर्न को देखिए. कंसोर्टियम ऑफ NLUs की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे. आपको किसी और की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए, थोड़ा मेहनत करिए, एंड आप उसके डॉक्यूमेंट को पढ़िए. फर्स्ट आप पैटर्न को समझिए, उनके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी देखिए. एंड थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर 5 से 10 साल का आप देख सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक पैटर्न समझ में आ पाएगा. एंड अगर आप पैटर्न समझ पाएंगे तो फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में या कोई भी बुक पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगा. क्योंकि क्या होता है, ये सब बुक्स एंड न्यूज़पेपर में एक्सेस इन्फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है, तो हम लोग उतना ही इन्फॉर्मेशन लेंगे जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस. एंड थर्ड इज आप टॉपर का वीडियोज़ देखिए. बहुत सारे क्लैट के टॉपर्स अपना वीडियो डाले होंगे कि वो कैसे एग्जाम को अप्रोच किए थे, या कुछ राइट लोग से लिए जो और एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे आप मेंटरिंग ले सकते हैं, एंड आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए. सो दीज आर द फ्यू मिस्टेक्स विच आई सी एस्पिरेंट्स मेक, एंड ये फॉलोइंग पॉइंटर्स आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्लैट स्पेसिफिक भी है, बट ऑल्सो फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. So do share and comment down below if you have any doubts regarding these points, and if possible I would definitely help you guys out. So thank you for watching this video, and do remember that you have to be in the top 2% of the entire people who are attempting this examination. आपको top 2% में आना है, and top 0.2% for the top Bangalore NLU. So आप उतना ही important smart work and hard work दोनों करिए. So till the next video, take care and bye.